So hello everybody, first of all a big congratulations to all of you guys for being the part of this biggest live training, and please read the disclaimer later in the description. Let me show you the disclaimer. Hackitech, our community partners, YouTube are not responsible for any action you take after watching this video. Anything related to website, trademark we use in this video are the intellectual property of the respective owners. This training contains professional penetration testing and ethical hacking knowledge, and everything has been done in controlled and simulated environment. All videos and tutorials are for informational and educational purpose only. We believe ethical hacking or information security or cybersecurity should be familiar subject to anyone who are using digital information and computers. We believe that it is impossible to defend yourself from hackers without knowing how hacking is done. The tutorials and video provided by hackitech.com or Hackitech crowdsourced InfoSec community is only for those who are interested in ethical hacking and security. Penetration testing, hacking tutorials is against misuse of the information. We strongly suggest against it. Please regard the word hacking as ethical hacking or penetration testing every time we use this word in this training. All tutorials, videos have been made using own routers, server, website and other resources. We do not contain any illegal activities, and we do not promote, encourage, support and excite any illegal activities. Hacking without permission is illegal, right? So we do not want to spread these type of things. If you are doing illegal things, we are not responsible for anything. If you do anything related to these type of stuffs, we want to increase or we want to rise the cybersecurity or awareness in the society, and I want you guys to prevent yourself from hackers. If you plan to use this information for illegal purpose, please leave this training right now, and we are not held responsible for any use of misuse of information. If you use any information for illegal purpose, we are not responsible for anything you use in this given training, right? So आने वाले 15 minutes we are not going to talk about ethical hacking और कोर्स से रिलेटेड थिंग. हम किसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. 15 मिनट हम सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ा रहे हैं. 15 मिनट हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये जो ट्रेनिंग है क्यों चल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं इस कोर्स कंटेंट में कि आपको पढ़ना चाहिए. आपको सर्टिफिकेशन कब मिलेगा, आपको अटेंडेंस सिस्टम कब मिलेगा, क्या क्या प्रोसीजर है इस चीज़ का, तो आपको प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है और आपको बनवाया जाएगा या फिर आपको सिखाया जाएगा. एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन. पर उससे पहले 15 मिनट मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो कि एक्चुअल में इस ट्रेनिंग में हो क्या रहा है. गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं गेम से. लेट मी शो यू द गेम. ओके, तो स्टार्ट करते एक छोटे से गेम से. इन सब मे बी मैं किसी की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, बट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करती हुई, और आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन. मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता यहाँ पे, बट इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम और ज़्यादा डीपली इस चीज़ को समझ पाएंगे कि वाई वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर इसकी वर्थ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 40,000 रुपीज़ होगी. अगर कोर्स कंटेंट को देखा जाए तो 50,000 रुपीज़ डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग कोर्स कंटेंट में. तो वाई वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके पीछे का रीज़न क्या है. सो आप लोगों को क्या करना है, अभी थोड़ा सा गैस करना है. आपको गैस ये करना है कि एक्चुअल में ये जो लोग मैं दिखाने वाला हूँ आपको ये गैस करना है कि लोग हैं कौन. लेट मी शो यू. बॉलीवुड एक्ट्रेस. आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये कौन है. द सेकेंड वन इज़ इंडियन इकोनॉमिस्ट. द थर्ड वन इज़ फेमस बॉलर एंड द फोर्थ वन इज़ इंडियन पॉलिटिशियन. तो आपको ये बताना है कि ये लोग हैं कौन. गॉट इट? अगर आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ. आपको हल्का सा टाइम दे रहा हूँ मैं सोचने का. अगर आपको लाइव चैट में डालना तो आप लाइव चैट में डाल लो, मैं देख लेता हूँ. लेट मी सी. ओके, देखो, अगर आपको पता लग गया होगा तो आपको इतना बहुत समझ आ गया होगा एक्चुअल में इस ट्रेनिंग में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. बट अगर आपको गैस लगा हो थोड़ा थोड़ा तो आपको पता लग गया होगा कि ये लोग हैं कौन.
अगर इनका बैकग्राउंड देखें, दे ऑल आर इंजीनियर्स। दे डोंट लुक लाइक ए इंजीनियर बट दे ऑल आर इंजीनियर्स। ये सब के सब इंजीनियर्स हैं। इनके बैकग्राउंड को अगर चेक करा जाए तो ये सब के सब इंजीनियर्स हैं। नाउ द थिंग इज़, इनके बाद भी एक फैक्ट आता है कि अपना जो देश था वो 1947 में आज़ाद हुआ था। तब से लेके अभी तक वी गॉट ओनली 28 ओलंपिक मेडल्स। चाइना के पास 608 ओलंपिक मेडल्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस ओलंपिक मेडल्स हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया के पास अभी भी ज़्यादा है। मतलब अगर चाइना को मिला दिया जाए और इंडिया को भी मिला, मतलब आई एम सॉरी, चाइना को मिला दिया जाए और अमेरिका को मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया के पास ज़्यादा है। तो वो चीज़ आपको गेस करनी है। गॉट इट? अगर आपको पता लगा हो, थोड़ा बहुत आपने इस सेशन में अभी तक ध्यान दिया हो, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि वो कौन सी चीज़ है। द थिंग इज़ नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स। वी आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स एवरी डे। हम इतने ज़्यादा इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं आज की डेट पे जितना कोई नहीं कर रहा। सो हम लैग कहाँ कर रहे हैं? अगर इतने ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, इतने ज़्यादा क्रिएटिव माइंड्स हैं, इफ़ वी आर दैट मच कैपेबल टू डू समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ और वी हैव दैट मच ऑफ इंजीनियर्स, तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सो बात यहीं पे आके अटक जाती है। और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला, लाइक मेरे बारे में क्या डिफरेंस है, लाइक आई एम ऑल्सो इंजीनियर, बट मेरे में क्या डिफरेंस है या फिर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम Sandeep Kumar. I am a cybersecurity enthusiast from very early age, which enables me to learn a lot of skills and technologies. Right now, I am a founder of Hackitech crowdsourced InfoSec community. So जब मैं स्कूल में था तो मैंने दो बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। द फर्स्ट मिस्टेक वॉज, मैं 10th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ता था। जब मैंने पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करी थी तो मेरा बहुत इंटरेस्ट आता था, मैथ्स पढ़ लिया, साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स थे हमारे, तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। इन सब चीज़ों में हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था। फिर द सेकंड मिस्टेक वाज, मैं 10th क्लास के बाद थोड़ा घूमने लग गया, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी छूटने लग गई धीरे धीरे करके। दैट वाज माई सेकंड मिस्टेक। अब ये जो दो गलतियाँ अगर आप कर लेते हो अपनी लाइफ में, और अगर आप इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हो, अगर आप इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हो, अगर आपकी फैमिली इंडिया में रहती है, अगर आप उनके साथ रहते हो, द थिंग इज़ आप एक थर्ड मिस्टेक बाय डिफ़ॉल्ट करते हो, वो है इंजीनियरिंग में घुसना। इंजीनियरिंग हो गया, कोई भी ग्रेजुएशन में घुसना, आई एम नॉट ब्लेमिंग। द थिंग इज़ बिना नॉलेज के आप सीधा एडमिशन ले लेते हो। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि हम जब 10th में होते हैं, हम जब 12th में होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है और इंजीनियरिंग करनी क्यों है, उसका पर्पस नहीं पता होता। गॉट इट? बस इंजीनियरिंग करनी है, दैट्स इट। प्लेसमेंट चाहिए, दैट्स इट, इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया, पर इसके पीछे का रीज़न कोई नहीं जानता। अब जब मैंने ज्वाइन करा इंजीनियरिंग, वहाँ पे एक कॉलेज में बहुत अच्छी चीज़ दे रखी थी, जो कि थी सिलेबस में एथिकल हैकिंग। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 12th तक मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, एक्सपोजर नहीं था टेक्नोलॉजी का। नाउ आई हैव द एक्सपोजर। मुझे वर्ड मिल गया एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी फील्ड है मेरी। मैं जो स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ बीटेक के अंदर, वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और इसके अंदर हमारे नेटवर्किंग, फॉरेंसिक, एथिकल हैकिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। बट टीचर्स विल नेवर टेल यू अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ स्टफ। आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई जाएगी कॉलेज में, पर बात यह है कि आप कैसे पढ़ोगे इनको। द थिंग इज़, अगर आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना है तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, आपको यूट्यूब से देखना पड़ेगा, आपको यूडीमी से कोर्सेज लेने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों से आप पढ़ सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, या तो इन सब चीज़ों से आप पढ़ सकते हो। अब बात एक और आती है यहाँ पे कि आप जब इस फील्ड में घुस जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर, इफ़ यू आर अ वेब डेवलपर, तो वहाँ पे भी आप एक टाइम के लिए अपनी टीम को वर्क दे सकते हो, बट यहाँ पे आपको खुद करना पड़ेगा, बिकॉज आपके एक फाउंडेशन लूज़ हो गया, आपका जितना भी बेसिक है वो लूज़ हो गया, तो आप आगे जाके परस्यू नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं आज की डेट में, रिसेंटली एक स्टूडेंट था मेरे कॉलेज का, फर्स्ट ईयर का था, उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि सर मैंने एक्सेस अटैक लगाया,
और वो अटैक वनरेबिलिटी मेरे को कंपनी ने बाउंटी प्रोवाइड कर दी और उसको 50 यूरोस दिए क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। बात ये आई कि उसको रीज़न ही नहीं पता कि वो एक्चुअल में हुआ कैसे। उसने मेरे से एक दिन पूछा था, मैंने उसको जस्ट बता दिया कि ऐसे कर सकते हैं, और ही जस्ट हिडन ट्रायल, वो ट्राई करे जा रहा है उस चीज़ को। उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानता, उसके पीछे का ये भी नहीं जानता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो वो गलत है। गॉट इट। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? देखो, आपको ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम पहले फाउंडेशन कवर करेंगे, वो करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, दैट इज़ कंपल्सरी। बिकॉज आपका फाउंडेशन लूज़ हुआ, आपको अगर आईपी एड्रेस नहीं पता क्या होता है, तो आप इस ट्रेनिंग में आगे पढ़ कैसे सकते हो? गॉट इट। तो आपको पहले फाउंडेशन से एकदम बेसिक टू एडवांस करवाया जाएगा, तो बेसिक जो होगा आपका हर चीज़ कवर होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि एवरीवन हियर इज़ फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। मैं अभी बस ये मान के चल रहा हूँ कि आप जितने भी बच्चे हो वो सारे के सारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। माना कि सबके सब टेक्निकल बैकग्राउंड से, दैट्स वाई यू आर हियर। पर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको अभी तक कुछ नहीं पता, नाउ यू आर स्टार्टिंग इन दिस फील्ड, तो आप कैसे कर सकते हो इसको स्टार्ट। गॉट इट। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा था। मैं एक और चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है आपके पास 365 डेज़ दे रखे हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि हम पढ़ नहीं पाते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्कूल से हैं, हम कॉलेज से हैं सॉरी, तो उनके पास भी एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं कि एग्ज़ाम डेज़ को हटा दिया जाए, हॉलीडेज़ को हटा दिया जाए आई एम सॉरी या एग्ज़ाम डेज़ को हटा दिया जाए, हॉलीडेज़ को हटा दिया जाए, घूमने फिरने का टाइम हटा दिया जाए, तो आपके पास इतना टाइम बचता है कि यू कैन डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं बस निकाल देता था ऐसे ही, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तो मैं स्पोर्ट्स खेलने चल जाता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरा टाइम बहुत लॉस्ट होता था, बहुत ज़्यादा निकल जाता था, और मैं टाइम निकालता भी रहता था। पर अगर आप 3 से 4 घंटे नहीं दे पा रहे हो इस फील्ड को, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आपको डेली देना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा, लेट मी शो यू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। अब यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है, ये मैं इंस्टीट्यूट क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आईआईटी, एनआईटी, बिट्स फिलानी, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी इनकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा इनका, ठीक है। बट द थिंग इज़, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं एक अमेरिकन ब्रॉडकास्ट देख रहा था यूट्यूब पे। मैंने जब ब्रॉडकास्ट देखा तो उस बंदे ने, जो सामने वाला बंदा था, उसने एक चीज़ बोली मेरे को नहीं, आई एम सॉरी, ब्रॉडकास्ट चल रहा था, सबको बोली थी। तो वो एक चीज़ बोली उसने, वो चीज़ ये थी कि दे इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वो जो ऑयल है वो सऊदी अरेबिया से मंगाते हैं, और जो कार है वो जापान से मंगाते हैं, और टेलीविज़न को कोरिया से मंगाते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो विस्की है वो स्कॉटलैंड से मंगाते हैं, राइट। द थिंग इज़ व्हाट दे इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया से मंगाई जा रही है? गैस कर सकते हो अभी भी? या दे इम्पोर्ट वेरी वेरी स्मार्ट पीपल फ्रॉम इंडिया। जितने भी एनआईटी, आईआईटी, बेड फिलानी, इनमें होते हैं, तुमने देखा होगा कि फॉरेन की कंपनी इनको हायर कर लेती है बड़े बड़े पैकेजेस में। क्यों करती है? सो अगर उनकी कंट्री के लिए हम कुछ कर सकते हैं, इफ़ यू आर दैट मच कैपेबल टू डू फॉर अदर कंट्रीज, सो वाई वी आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। हम अपनी कंट्री के लिए क्यों नहीं करते? वाई वी आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग ग्रेट। हमारे खुद का प्रोडक्ट क्या है आज की डेट में? नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं बोल रहा, आज की डेट में देखा जाए तो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है खुद का। इंजीनियर्स ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, अगर देखा जाए उस हिसाब से, अगर टेक्निकल लेवल पे देखा जाए, तो हमारे पास खुद का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो लॉन्च चल रहा है एज अ टेक्निकल बहुत अच्छे बूम पे? व्हाट्सएप बाहर का है, सिग्नल आया था अभी, वो भी बाहर का है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडियाज़ यूज़ कर रहे हैं, सारे के सारे हमारा डेटा यूज़ कर रहे हैं। गॉट इट। हमारा डेटा उनके पास है, माना कि वो इंक्रिप्टेड वे में है, बट है तो किसके पास? उनके पास है ना, राइट। चाहे उनकी कोई सी भी पॉलिसीज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे हैव आवर डेटा। अब यू आर टॉकिंग अबाउट इफ़ वी हैव आवर ओन ऐप, अगर हमारे पास खुद की ऐप होती तो हमारा डेटा कहाँ होता? हमारे इंडिया में। गॉट इट। मेरे पॉइंट को समझ रहे हो? इफ़ वी आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग ग्रेट इन आवर लाइफ, हाउ वी कैन क्रिएट समथिंग फॉर अदर कंट्रीज़? हम दूसरों की कंट्रीज़ के लिए तो कर रहे हैं, बट अपनी कंट्री के लिए क्यों नहीं कर रहे?
गॉट इट। सो इस ट्रेनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट डालने का द ओनली रीज़न फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग इज़, मैं ये ट्रेनिंग क्यों करा रहा हूँ, इसका रीज़न जो इतना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा का सारा इसीलिए था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग ग्रेट फॉर माई कंट्री, और आई वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव फॉर माई कंट्री। आई वॉन्ट यू गाइज बी द क्रिएटर ऑफ द टेक्नोलॉजी। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के फाउंडेशन लूज़ हो, मैं नहीं चाहता आप लोगों का जितना भी एथिकल हैकिंग का है या फिर कोर्स कंटेंट है या जितनी भी फील्ड्स है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गई, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग हो गई, फॉरेंसिक हो गया, ये सारी चीज़ें छूट जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये कॉस्टली होता है, इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। सॉल्यूशन मिल चुका है, यहाँ पे पूरा कंटेंट जितना भी है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सर्टिफिकेशन मिला जाएगा एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग, आपको बताया जाएगा किस तरीके से मिला जाएगा। नाउ द थिंग इज़, लेट मी शो यू, वेट, लेट मी शो यू द हैंडमेड नोट्स। ठीक है, हैंडमेड नोट्स किस टाइप से बने हैं, डिजिटल नोट्स कैसे होंगे, क्लियर वे में समझा देता हूँ, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि एक्चुअल में कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है। लेट मी शो यू, जस्ट वेट। गॉट इट, आई गेस आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी इस चीज़ की। देखो ये जो है ये डिजिटल नोट्स हैं, आपको डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे या फिर आपके ग्रुप्स पे हम लिंक सेंड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन सब चीज़ों को। बट अभी के लिए इतना समझो कि ये जो हैंडमेड नोट्स है ये है करिकुलम। यहाँ पे आपको सब कुछ बता रखा है कि एक्चुअल में क्या क्या है। ये हमारी वेबसाइट के लिंक है, लिंक्डइन के, इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, तो सारे के सारे सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप यहाँ पे पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमारे जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स बने हैं उनमें पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं कोर्स कंटेंट से। अब यहाँ पे देखो मॉड्यूल 1 मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि आप लोगों को फाउंडेशन को कवर करना पड़ेगा। फाउंडेशन को कवर करना पड़ेगा, आपको जितना हो सके आपको बेसिक कवर करना पड़ेगा। तो बेसिक हम पहले पढ़ाएंगे, इन सब के आपको डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, एकदम इसी वे में मिलेंगे आपको डिजिटल नोट्स, एकदम क्लियर और हमारे एकदम रीडेबल लैंग्वेज में, मतलब कि आपको समझ आ जाए उस टाइप में आपको नोट्स मिल जाएंगे। पिक्चरल व्यू मिलेंगे आपको, इमेजेस वगैरह, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगे लगे रहेंगे उसमें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है वो। तो आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ समझाया जाएगा। मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 25 पेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने ज़्यादा पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। और बेसिक एनवायरनमेंट आपका सेटअप करवाएंगे, जितने भी आईटी लॉज हैं उन सबको बताएंगे। स्टार्टिंग में आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इन सब के बाद आपको लिनक्स गाइड दी जाएगी। लिनक्स गाइड यानी कि पूरी की पूरी लिनक्स समझाई जाएगी, कमांड शेल बेसिक्स, विंडोज़ के बेसिक्स, जितने भी है लिनक्स कमांड्स के बेसिक, सब कुछ आपको बताया जाएगा। फाइल सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं, टर्मिनल, शेल कमांड, डॉस कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग, पैकेज मैनेजर कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। फिर आपकी आएगी नेटवर्किंग गाइड। नेटवर्किंग गाइड में आपको OSI लेयर वगैरह, नेटवर्किंग से रिलेटेड जितना भी है आपको सब कुछ बताया जाएगा। OSI लेयर में जितने भी लेयर्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करा जाएगा। इसके बाद VPNs हो गया आपका। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ट्विस्ट वाला पार्ट पढ़ो, गॉट इट। क्योंकि क्या होता है कि थ्योरी के बाद जैसे ही हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल्स पे, तो थ्योरी थोड़ा बोरिंग टाइप होता है, गॉट इट। आपको याद नहीं हो तो उसके लिए आपको कंसेप्ट मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह देता रहूँगा, गॉट इट। तो जिस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा आपको ये समझना है कि एक्चुअल में मैं बोल क्या रहा हूँ, गॉट इट। क्योंकि नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, आपको एक्चुअल लैंग्वेज जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, बट जो कंसेप्ट है उसके पीछे का वो हिंदी में जब मैं आपको समझाऊंगा तो वो आपको ध्यान से समझना है उस चीज़ को। नाउ द थिंग इज़ VPN कैसे चलता है, क्रिएट कैसे करते हैं, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। SSH वगैरह के बारे में हम पढ़ लेंगे आगे जाके, टेलनेट वगैरह। देखो ये तो कोर्स कंटेंट है तो आपको समझ आ जाएगा जब आपको ये मिल जाएगा। कोर्स कंटेंट मैं आज आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा PDF, आप देख लेना उसको। नाउ द फिफ्थ थिंग इज़ डार्क नेट और डीप वेब और सरफेस वेब एक्सेस कैसे करते हैं, एंड तुम्हारा डीप वेब, सरफेस वेब, ये सारी चीज़ें होगी, अनियन राउटिंग, टॉर वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टॉर, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। कोई दिक्कत आती है तो मैं वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि एक्चुअल में एरर्स कौन से आते हैं और उन एरर्स को कैसे सॉल्व करा जाता है, वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। लास्ट में एक केस स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ऐसी कौन सी केस स्टडी है या फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से डार्कनेट को इतना ज़्यादा लीगल टाइप का माना जाता है, गॉट इट। तो उसके बारे में एक केस स्टडी है, लाइव केस स्टडी है, मतलब कि रियल FIR वगैरह दर्ज हुई थी,
तो उनकी ओरिजिनल FIRs वगैरह हैं तो वो हम देखेंगे। गॉट इट। ये नेट पे अवेलेबल है, आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, बट मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगा। फिर आता है आपका फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस। अब इसमें आप पूरी फुट प्रिंटिंग कवर कर लेंगे। टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग जितनी भी है ये सारी प्रैक्टिकल यहाँ से चालू हो चुका है। फुट प्रिंटिंग कैसे होता है, OSINT क्या होता है, ईमेल फुट प्रिंटिंग, वेबसाइट, गूगल डॉकिंग, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी। यहाँ पे ST ट्रैक कौन सा होता है, ST ट्रैक एक टूल होता है बेसिकली, इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। तो हुईस हो गया, DNS हो गया, नेटवर्क फुट प्रिंटिंग हो गया, तो एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। गॉट इट। यहाँ पे मल्टी को यूज़र है, फॉरेंसिक टूल है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए टूल यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। गॉट इट। यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको बताए थे, OSINT हो गया, तो ये डेडिकेटली यहाँ पे नीचे जाके एक्सप्लेन करा जाएगा। फिर हार्वेस्टर हो गया, शोडन हो गया, वॉट वेब हो गया, वेपलाइजर, सब डोमेन फाइंडर, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। गूगल हैकिंग, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि आई हैव माई ओन डॉक्स, मेरे 2 डॉक पब्लिश हो रखे हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 डॉक पब्लिश कर लो अपने नाम से। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना खुद का डॉग बना सकते हो, उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं। तो एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, आप करना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट थिंग इज स्कैनिंग। स्कैनिंग का पार्ट आया। अब स्कैनिंग में हम कौन कौन सी स्कैनिंग यूज़ करेंगे देख लो। ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं भी कोर्स कंटेंट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू कि हर मॉड्यूल में हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा। मैं आपको सिर्फ अभी कोर्स कंटेंट दिखा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारा जो कोर्स होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्यों आपको इस ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहना चाहिए। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। गॉट इट। ये सारी चीज़ें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो गई, नेसेस टूल यूज़ कर सकते हैं, निक्टो स्कैन, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। गॉट इट। मैं फालतू में ही दिखा रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें, बट मैं आपको ये सारी चीज़ें दे दूंगा ग्रुप में, आप उससे डायरेक्टली देख लेना। सिस्टम हैकिंग में क्या क्या करने वाला है, पासवर्ड क्रैकिंग करने वाला है, टेक्निक्स कौन कौन सी होने वाली है, ईव्सड्रॉपिंग क्या होती है, पासवर्ड गेसिंग क्या होता है, फिर रिम्बो अटैक कैसे करते हैं, स्टीलिंग पासवर्ड यूजिंग की लॉगर क्या होते हैं, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। सैम फाइल जो होती है विंडोज़ के अंदर बनती है वो कैसे आती है। तो ये सारी चीज़ें, ये टूल्स हम यूज़ करते हैं, हम इनको यूज़ करेंगे, लाइव यूज़ करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें होने वाली है लाइव होने वाली है। मेटास्प्लॉइट कैसे यूज़ करते हैं, विंडोज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब देखो विंडोज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम खुद का इन्वायरमेंट बनाएंगे, उस इन्वायरमेंट को हम हैक करेंगे। हैक का मतलब एथिकल हैकिंग से रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलरेडी आई ऑलरेडी टेल यू गाइज कि हैकिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर ये जितने भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एथिकल हैकिंग मानना इनको, इलीगल पर्पज़ के लिए कुछ मत यूज़ करना। एंड प्रिविलेज एस्केलेशंस वगैरह बताएंगे हम, लिनक्स का और विंडोज़ का दोनों का बताएंगे। फिर की लॉगर्स वगैरह कैसे कैसे होते हैं, एंड हिडन फाइल्स कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। स्टेगनोग्राफी वगैरह बताया जाएगा कि इमेज के अंदर, एक इमेज के अंदर कैसे डेटा को स्टोर करा जाता है, हाइड करा जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। सोशल इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी अप्रॉक्सीमेटली ये हम जो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं फेसबुक हैक कर लिया, इंस्टाग्राम हैक कर लिया, ये क्या छोटी चीज़ें है क्या? ये ऐसी चीज़ें नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ें नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एक्सपीरियंस लोग सिक्योरिटी टीम में काम करते हैं, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, या फिर इतने सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर। तो वो लोग प्रिवेंट करते हैं कि हैकर्स अटैक करें तो उनसे बचा जाए। गॉट इट। तो वो चीज़ें हो कैसी रही, अगर इतना इजी होता इन सबको अकाउंट टेक ओवर करना तो हर कोई कर लेता। गॉट इट। तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि पीपल आर द मोस्ट वर्नेबल थिंग इन द वर्ल्ड। मशीन को मैनिपुलेट करा जा सकता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज से, पर एक लिमिट तक। अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो तब आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। गॉट इट। पर अगर आप इंसानों की बात करो, पीपल की बात करो, तो पीपल आर मोस्ट वर्नेबल मोर देन मशीन्स। मशीन से ज़्यादा वर्नेबल होते हैं, क्योंकि हर आदमी आज की डेट पे सोशल मीडिया यूज़ करता है। उसको मैनिपुलेट कर दोगे तो वो अपने आप पासवर्ड बग देता है। गॉट इट। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो ये जो चीज़ें हैं ये सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आती है। ये टेक्निक्स हम सिखाएंगे आपको कि ऐसे कैसे करा जाता है, एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। इनको इलीगल पर्पस के लिए यूज़ मत करना। टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। और इनसाइडर अटैक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। आइडेंटिटी थ्रेफ्ट क्या होता है, ऐसी टूल्स कौन कौन से होते हैं हम जो यूज़ करते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस, 10th मॉड्यूल हमारी डिनाइल ऑफ सर्विस पे होगी।
और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाल ऑफ सर्विस के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, सिंक फ्लडिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बॉटनेट्स, अटैक टूल्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ फॉरेंसिक। मॉड्यूल 11 में हम फॉरेंसिक पढ़ेंगे, कंप्यूटर फॉरेंसिक पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंसिडेंट रिस्पॉन्स करेंगे, हार्ड डिस्क को कैसे बिट स्ट्रीम इमेज बनाया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। विंडोज़ फॉरेंसिक के बारे में पढ़ेंगे। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन, गॉट इट गाइज? जस्ट वेट, या एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ लिनक्स फॉरेंसिक पढ़ने के बाद मोबाइल फॉरेंसिक भी आपकी कवर हो जाएगी, डिजिटल फॉरेंसिक भी कवर हो जाएगी। एक आता है बायो फॉरेंसिक, हम उस पार्ट को कवर नहीं करने वाले क्योंकि वो टेक्निकल टर्म में नहीं आता है, ठीक है, तो हम उस पार्ट को स्किप कर देंगे। वो एक डेडिकेटेड फील्ड हो गई एक तरीके से देखा जाए तो, बट हम उस पार्ट को कवर नहीं करेंगे। द 12th मॉड्यूल इज़ बग बाउंटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग तो देखो आपका कवर हो जाएगा, बट यहाँ पे जब आते हैं तो डेडिकेट हो जाता है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के ऊपर। ये बग बाउंटी आप एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग में भी कर सकते हो, आप वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में भी कर सकते हो, आप नेटवर्क टेस्टिंग में भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी बग हंटिंग के अंदर आती है, बट यहाँ पे हम मोस्ट फोकस करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस हम एक चीज़ पे देंगे, वो है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग को। तो यहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा, बिकॉज़ ये जो फील्ड है बग हंटिंग की और वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होगी, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। इस ट्रेनिंग के बाद में भी शायद अगर मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग कराऊँ तो उसमें मैं आपको करा सकता हूँ इसके बारे में, बट अभी के लिए इतना समझ के चलो कि इस पूरे मॉड्यूल में हम वेब एप्लीकेशन का आधा पार्ट यूज़ कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली पढ़ लेंगे। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कैसे बनाया जाता है, सब कुछ बताया जाएगा। बग हंटिंग होती कैसे, कौन कौन से अटैक्स यूज़ होते हैं और क्या क्या करना चाहिए अटैक से पहले, अटैक के बाद, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। और टूल्स कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इस वाले पार्ट में। सो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मेरे को वहाँ पे सीधा डीएम कर सकते हो आप। आपके चैनल के जो यूट्यूब चैनल चल रहा है अभी, उसमें वीडियो के साइड में आई थिंक मेरा आईडी दे रखा होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे को पिंग कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, पर्सनल डाउट होता है, अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, तो वो पर्सनल डाउट आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बट अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है टॉपिक से रिलेटेड या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में मैसेज कर देना। आपके टेक्निकल वॉलंटियर्स हो गए या हमारी टीम हो गई, दे विल हैंडल एवरीथिंग। मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं उतना ज़्यादा आपको एंगेज रखूँगा, मैं आपको उतना ज़्यादा चीज़ें बताता जाऊँगा कि एक्चुअल में उसके पीछे का रीज़न क्या है, और आपको जो चीज़ें समझ नहीं आएगी मैं वापस से कवर भी कर सकता हूँ उसको। गॉट इट? तो आपको ट्रेनिंग के बाद ये सही चीज़ें बतानी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ हैंडमेड नोट्स। ये भी मिलेंगे आपको, डिजिटल नोट्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हैंडमेड नोट्स भी मिलेंगे। किसी किसी को लिखना पसंद नहीं है तो वो डायरेक्टली फोटोस्टेट करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हैंडमेड नोट्स देखो ट्रेनिंग को थोड़ा सा अगर हल्का सा भी मैं डिफ्रेंशिएट करूँ दूसरे ट्रेनिंग से या फिर ऑनलाइन कोर्सेज से या अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो डेटा पड़ा है यूट्यूब के अंदर, उनसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँ तो कैसे कर सकते हो। मोस्टली क्या करते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यूट्यूब चैनल्स वगैरह क्या करते हैं कि HTTP बता दिया, HTTPS बता दिया, गॉट इट, इनके बीच में डिफरेंस बता दिया, सिमिलैरिटीज़ बता दी, कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये बता दिया, गॉट इट। पर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं HTTP 1.2 क्या होता है, HTTP 2 क्या होता है, HTTP 3 क्या होता है, HTTPS क्या होता है और HSTS क्या होता है, गॉट इट। तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, एक एक चीज़ें इस तरीके से चलेंगी हमारी, गॉट इट। इतनी सारी चीज़ों को जब समझोगे आप तो आपका बेसिक फाउंडेशन वगैरह सब क्लियर रहेगा, एकदम आपको समझ आ जाएगा। तो आपके बेसिक जब स्ट्रांग रहेंगे तो जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आप आंसरेबल होगे कि एक्चुअल में ये जो चीज़ वर्क कर रही है, अगर पैकेट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये पैकेट यहाँ से जा रहा है तो क्यों जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको आंसरेबल होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, गॉट इट। द नेक्स्ट थिंग इज़, लेट मी शो यू द अनदर थिंग।
द थिंग इज़ यहाँ पे इस लिंक्डइन का जो पेज है हमारा, इस लिंक्डइन पेज पे मैं क्वेश्चन को अपलोड कर दिया करूँगा। देखो मैं ट्रेनिंग के बीच में कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा, उस क्वेश्चन को आपको देखना है, उसका आंसर देना है। अगर मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन बताया कि आप मेरे को इस चीज़ का आंसर दो, तो मैं यहाँ पे उसको अपलोड कर दूँगा। आपको यहाँ पे कमेंट करना है उसका आंसर। अगर आप आंसर देते हो तो मे बी शायद हम आपको गुडीज़ बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों में एंगेज रखने के लिए हमने ये सारी सिस्टम को बिठाया है, ताकि आप आंसरेबल हो। क्योंकि आपको जिस टाइप के क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको भी क्यूरियोसिटी आएगी कि एक एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न क्या है। गॉट इट? समझ रहे हो? देखो मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा तो आपको उसका आंसर देना है। आपको उसका आंसर विद इन 24 आवर्स के अंदर दे सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक आपको उसका आंसर देना है। मेरी टीम, मैं खुद इसको देखूँगा यहाँ पे कि किसका आंसर सही है, और हम उसको बताएंगे कि एक्चुअल में इस बंदे का आंसर सही है यूट्यूब वीडियो में लाइव। गॉट इट? तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा ये है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली पिंग कर देना मेरे को, एनी टाइम मैं अवेलेबल हूँ, हर टाइम। आपको बस मेरे को पिंग करना है। अगर कोई पर्सनल इशू है या फिर पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर कोई पर्सनल कुछ भी रिलेटेड टू पर्सनल थिंग, यू कैन शेयर मी इफ़ यू वांट टू। तो आप मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरे को अगर आपको कोई भी चीज़ रिलेटेड टू ट्रेनिंग, आपको इन सब चीज़ों से क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम है, टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को ग्रुप पे पिंग कर सकते हो। तो आपको ग्रुप में टेक्निकल वॉलंटियर्स आपकी हेल्प कर देंगे। द अनदर थिंग इज़, लेट मी शो यू गाइज, जस्ट वेट। yes, the another thing is अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस सिस्टम चलेगा कैसे? देखो अटेंडेंस सिस्टम का एक बहुत अच्छा सा सीन है। हमने क्या करा है, हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग अटेंडेंस सिस्टम में एक गूगल फॉर्म दिखाया जाएगा आपको, जैसे अभी दिख रहा है इस तरीके से आपको एक गूगल फॉर्म दिखाया जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आपको ये लिंक डालना है अपने ब्राउज़र में। जब इसको खोलोगे तो आपके सामने दो चीज़ें मांगेगा। आपको क्या क्या मांगेगा? आपको एक तो मांगेगा यूज़र नेम, जो कि आपका नाम है, और दूसरी चीज़ मांगेगी कॉलेज का नेम। ठीक है, कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, स्कूल का नेम, या फिर आप कंपनी से बिलोंग करते हो तो उनका नेम। इनमें से जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं या फिर आप जिनमें भी हो उनका नेम डाल सकते हो आप। जैसे ही आपने इनका नेम डाल दिया, दैट मीन्स आपका अटेंडेंस लग चुका है। ये 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगा ये लिंक। वीडियो में कहीं पे भी वीडियो के बीच में मैं ये लिंक दिखा दूंगा 30 से 40 सेकंड्स के लिए। आपको ये लिंक देखना है, आपको डालना है और अपनी अटेंडेंस लगानी है विद इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के अंदर आप कभी भी वीडियो देख लेते हो, आपको ये लिंक मिल जाता है। वीडियो देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये लिंक मिलेगा ही मिलेगा। तो ये लिंक आपको जब भी मिलेगा आपको अटेंडेंस यहाँ से भरनी है। और ये लिंक आपको कभी भी किसी भी वीडियो में, अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग टाइमिंग के टाइम पे भी आपको मिल सकती है ये लिंक। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये लिंक कहाँ पे है और कब शो करा जा रहा है। तो डैट मीन्स अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, और अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आपकी अटेंडेंस रह जाएगी। तो आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी, और वीडियो आपके लिए अपलोडेड हमेशा के लिए है। और द अनदर थिंग इज़, वीडियो तो आपके लिए अवेलेबल है, पर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको अटेंडेंस लगानी है। अदरवाइज़ आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी अगर आपने 24 आवर्स के अंदर नहीं करा। और लिंक हर वीडियो में चेंज होगा, तो स्मार्टनेस नहीं दिखानी है यहाँ पे कि ये लिंक चेंज हो जाए या फिर सेम रहेगा तो हम इसी लिंक को बार बार भरते रहेंगे। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हर वीडियो में एक डिफरेंट लिंक शो करा जाएगा, और आपको 95% कंपलसरी अटेंडेंस मेंटेन करना। आपकी वीकेंड पे क्लास होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी 8 to 10 अप्रॉक्सीमेटली 10 का टाइम होगा, एंड 8 से लेके 10 तक का आपका जितना भी टाइम रहेगा, आपको उस टाइम के अंदर अंदर हम वीडियोस को शो करेंगे यहाँ पे लाइव में। द थिंग इज़, उस वीडियो के अंदर अंदर जब भी ये लिंक आएगा आपको वो देख के अटेंडेंस भरना है। द अनदर थिंग इज़, जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको जो सेशन है उस सेशन का जितना भी समरी है उस समरी को आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। कमेंट इसलिए करना है कि आई वांट यू गाइज टू बी एंगेज विद दिस वीडियो।
जब आप इसको कमेंट कर दोगे नीचे तो एक चीज़ आएगी जो कि है अटेंडेंस सिस्टम। तो हमने इंटीग्रेट कर रखा हमारा बॉट हमारे यूट्यूब चैनल से। तो आपकी जो कमेंट्स होंगे आपके नेम के साथ और आपकी ये फॉर्म लिंक के साथ मैच करेंगे, और जब मैच करेंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपको करनी है। आपको एक तो इस फॉर्म में अपनी अटेंडेंस लगानी है और कमेंट करना है यूट्यूब चैनल के नीचे कि आज क्या पढ़ाया गया है। कॉन्टेक्ट ये आपको हर वीडियो में करना है। और टाइमिंग और डेज़ में आपको पहले ही फिक्स कर देता हूँ, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना पड़े। टाइमिंग विल बी 8 to 10। 8 to 10 के बीच में मे बी शायद आपकी 1.5 घंटे की ही क्लास हो, मे बी शायद आपकी 1 घंटे की ही क्लास हो, मे बी शायद आपकी 9 से 10 आपकी 2 घंटे की पूरी क्लास हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको 8 से 10 के स्लॉट में कितने घंटे की क्लास हो रही है। जितने जल्दी हम कर सकते हैं, जितना हम कवर कर सकते हैं, हम उस हिसाब से करेंगे। बट आपका टाइम स्लॉट रहेगा 8 से 10। आप उसको सेट कर लो, अपना सारा काम जितना भी है पहले ही निपटा लो, बट 8 से 10 आपका टाइम रहेगा। एंड डेज़ की बात करें तो डेज़ आपका रहेगा सैटरडे और संडे। आज फ्राइडे है, आज की डेट में हमने अपनी इनिशिएटिव ले लिया है, इंट्रोडक्टिव सेशन ले लिया है। सैटरडे मतलब कि जो कल है, कल हम ले लेंगे आपका फर्स्ट मॉड्यूल का जितना भी है अप्रॉक्सीमेटली, जितना भी कवर कर सकता हूँ मैं उसको कवर कर लूँगा फर्स्ट मॉड्यूल में। देन जैसी आपकी फ़र्स्ट क्लास हो जाएगी तो संडे को कोई क्लास नहीं है इस बार। आपको नेक्स्ट सैटरडे संडे, फिर उसके नेक्स्ट सैटरडे संडे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये क्लासेस अगर देखा जाए मंथ में तो 12 क्लासेस विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर मंथ। इस मंथ में 12 क्लासेस हो सकती है आपकी वीकेंड में। और अप्रॉक्सीमेटली देखो 2 मंथ की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 क्लासेस आपकी हो जाएंगी। और उन 12 क्लासेस के बाद में क्या, कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको इतना ज़्यादा कवर नहीं करा पाऊँगा मैं 12 क्लासेस के अंदर। तो आपकी जो 3rd मंथ होगा उसमें 3 क्लासेस होंगी। देखो आपको 2 महीने तो आपको अप्रॉक्सीमेटली, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। गॉट इट। आपको क्या करना है, सैटरडे संडे आना है, आपका बस ये काम है। सैटरडे संडे ऑनलाइन आना है, आपको यहाँ पे वीडियो देखनी है, आपको अटेंडेंस लगानी है, आपको सर्टिफिकेट मिलने के लिए। गॉट इट। और जितनी नॉलेज हो सके उसको गेन करो, कमेंट करो चैनल पे। और कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में सेशन के एंड में पुट कर दो, हम उसका आंसर देंगे। गॉट इट। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो पर्सनली, अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो। गॉट इट। और द अनदर थिंग इज़ 2 मंथ तो आपके हो गए अप्रॉक्सीमेटली इस चीज़ों में कि 12 क्लास होंगी। आफ्टर डैट जो तीसरा मंथ आएगा उस तीसरे मंथ में हम 3 क्लासेस लेंगे वीकेंड के अंदर। मतलब कि 3 क्लासेस होंगी आपकी हर हफ्ते में, तो आपका पूरा सिलेबस जितना भी है वो कवर हो जाएगा। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो है आपकी प्रोजेक्ट वर्क। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइज। या आई गेस ये विजिबल होगा। देखो आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। अब जो प्रोजेक्ट है वो किस बेसिस पे होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीज़ें समझाई जाएगी यहाँ पे। और आपके लिए देखो प्रोजेक्ट बेसिस हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको अगर आपका एक प्रोजेक्ट तैयार रहेगा इंडस्ट्रियल लेवल पे तो आप उसको कॉलेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने स्कूल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके लिए एक सिमुलेशन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए हम एक सिमुलेशन क्रिएट करेंगे। उस सिमुलेशन में क्या क्या है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सिनेरियो ले रहा हूँ, ये कोई कंपनी है। गॉट इट। इस कंपनी का नाम मान के चलो संदीप है। अगर ये कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम है संदीप, और यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, द फर्स्ट डिपार्टमेंट, द सेकंड डिपार्टमेंट एंड द थर्ड डिपार्टमेंट। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। पहले वाले का नाम है DMZ, द सेकंड वन इज़ इंटरनल, गॉट इट, मैनेजमेंट। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है अलग अलग। अब बात क्या है, इन तीनों डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे हमने इनको बना तो दिया पर इसका बनाने का सेंस क्या है। अब देखो थोड़ा समझना है इसको। यहाँ पे कोई सर्वर है, ठीक है, उस सर्वर से मेरी वेबसाइट चल रही है और उस वेबसाइट को
वेट यहाँ पे एक वेबसाइट है मेरी, इतना समझ के चलो, यहाँ पे कोई एक सर्वर है DMZ के अंदर और उससे एक वेबसाइट होस्टेड है, उस वेबसाइट को ये चला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है कि ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। अगर मैं इससे इस मशीन को कम्युनिकेट कराऊँ, इससे बात करवाऊँ, तो ये नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस चीज़ को मैं समझाऊँगा अगर थोड़ा। तो ये है कि देखो ये सर्वर है, इससे एक वेबसाइट कनेक्टेड है, ये वेबसाइट होस्ट है पब्लिकली। ये मैं अगर बंदा हूँ कोई, तो मैं यहाँ से अगर वेबसाइट का डोमेन डालता हूँ, sandeep.com डालता हूँ, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इंटरनल और मैनेजमेंट कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जैसे ही ये दोनों कनेक्टेड है, तो अगर मैं इन दोनों को कम्युनिकेट कराऊंगा तो ये बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, पर मैं इन दोनों को कराऊंगा तो ये दोनों अपने बीच में कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। मतलब बातें करेंगे, मतलब एक तरीके से अगर मैंने इसको कोई मैसेज भेजा तो ये मैसेज मेरे को रिप्लाई कर देगा। ये चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये आएगा कि आज की डेट में अगर कोई हैकर, एथिकल हैकर हो गया या फिर हैकर हो गया, वो क्या करेगा, वो अगर इस कंपनी को अगर हैक करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है और कौन सा प्रोसेस यूज़ करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी गेस करो तो मैं थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ आपको। आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग गया होगा किस चीज़ के बारे में बात करो। द फर्स्ट वे विल बी सेम नेटवर्क में आना। आपको पहले इस कंपनी के नेटवर्क के अंदर आना पड़ेगा। इसको समझाऊं सिंपल वे में तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास कोई हॉटस्पॉट है, आपका मोबाइल हॉटस्पॉट होता है, आपके पास मोबाइल हॉटस्पॉट है। आपने क्या करा, उस मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही दूसरे बंदे को, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है, इसको कनेक्ट करना है आपके हॉटस्पॉट से, तो ये क्या करेगा, वाईफाई ऑन करेगा, सिंपल सा वाईफाई ऑन करेगा। अब वाईफाई ऑन करेगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, ये सेम नेटवर्क में आ गया, ठीक है। अब ये जब सेम नेटवर्क में आ गया तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब ये जो पर्सन है, ये इस पर्सन का इंटरनेट यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे समझो कि अगर इसको इसका डेटा चाहिए तो इसको इसके सेम नेटवर्क में आना पड़ेगा, इस कंपनी के नेटवर्क में आना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा VPN का। हम VPN यूज़ करेंगे यहाँ पे। VPN हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताऊँगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है, मैंने ये समझाया, ये क्यों समझा रहा हूँ, यहाँ पे इतना छोटा सा सिनेरियो है वो समझो। फाइनली इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ नहीं आया तो भूल जाओ ऐसा कुछ मैंने बताया, क्योंकि ये जब कराया जाएगा तो ढंग से समझाया जाएगा। अभी के लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, छोटा सा, तो उस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे इस बंदे ने क्या करा है, इसको हैक करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले वेबसाइट में घुसेगा, फिर क्या करेगा, सर्वर में घुसेगा, सर्वर में घुसने के बाद इंटरनल नेटवर्क में घुसेगा, इंटरनल में घुसने के बाद मैनेज में घुसेगा। गॉट इट। तो ये जो सिनेरियो बनेगा, ये सिनेरियो आपको बनाना है, ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। और ये जो सिनेरियो है ये पूरा हैक करके हम दिखाएंगे आपको सिमुलेशन के अंदर। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको शो करूँगा। पहले हम इसको हैक करना सीखेंगे, फिर हम इसको बनाना सीखेंगे। तो हम इस वाले DMZ को बनाएंगे। ये जो हमारा DMZ वाला मशीन है, इसको हम बनाएंगे अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। तो ये आपका प्रोजेक्ट होगा इस पूरे सेशन का। पहले हम इसको हैक करना सीखेंगे, आफ्टर डैट हम इसको खुद बनाएंगे अपने हाथों से, हैंडमेड। गॉट इट। तो दिस विल बी आवर प्रोजेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, लेट मी सी, ओके, दैट्स ऑल गाइज। अगर आपके दिमाग में कोई सा भी डाउट हो या फिर कोई भी चीज़ें हो, वो अगर आपको दिक्कत दे रही हैं कि समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी रिलेटेड टू एनीथिंग, गॉट इट गाइज, तो आपको वो चीज़ें मेरे से शेयर करनी है। अगर आपकी पर्सनल चीज़ है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो इन सब चीज़ों में। अदरवाइज़ मेरे को जितनी भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली ग्रुप पे पिंग कर सकते हो। गॉट इट गाइज। और द नेक्स्ट थिंग इज़, जितनी भी चीज़ें कवर होने वाली है बहुत लंबे टाइम तक होने वाले हैं, क्योंकि 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है। थ्योरी जब स्टार्ट होती है तो मोस्टली लोग क्या होता है कि बीच में मिसकंसेप्शन आ जाता है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, इन सब चीज़ों को समझ नहीं आता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से वो सेशंस को अटेंड नहीं कर पाते हैं। पर अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हमने 24 आवर्स दे रखा है। आप 24 आवर्स के अंदर कभी भी यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों को। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़,
अगर आप सोच रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में कि एक्चुअल में आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में किस फील्ड में घुसना है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग हो गई, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गई, आपकी बग बाउंटी हो गई, तो अगर आपको कोई भी लेन पसंद आती है आप मेरे को बताओ, ग्रुप में डालो, एंड मैं आपको उसका एक रोड मैप तैयार करके दूंगा और आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे, तो एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। देखो, नॉर्मल सर्टिफिकेशंस के पीछे मत भागना, ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन को क्रैक करने का सोचो जितना हो सकता है, OSCP क्लियर करने का सोचो, CH क्लियर करने का सोचो, CISSP क्लियर करने का सोचो। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ है जो कि बहुत हाई लेवल के, ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जितना हो सकता है आप इन सब चीज़ों को कवर करो। गॉट इट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको ट्रेनिंग में कोई भी दिक्कत आती है, आपके टेक्निकल वॉलंटियर आपको हेल्प कर देंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़, जैसे ही जैसे आप कवर करते जाओगे तो मैं ये चाहता हूँ आपकी तरफ से आउटपुट आए, मतलब कि हम अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपकी टीम बनेगी और उन टीम्स को डिवाइड करा जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 या 3 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में। तो आपको उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाना है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है। उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, आपको टीम्स के बीच में बनाना है और सिखा मैं दूंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ सिखाऊंगा कि बनाना कैसे कैसे है। जब बन जाएगा पूरा प्रोजेक्ट तो आपको उसको कस्टमाइज़ करना है अपने लेवल पे, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हो। गॉट इट। फिर हम आपके नेम से उसको पब्लिश कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्रिएट करनी है, आपका इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई दिक्कत देती हैं कहीं पे भी, तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको कोर्स कंटेंट अभी मैं भेज दूँगा, और अटेंडेंस सिस्टम में अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो जस्ट आस्क मी इन द ग्रुप, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू गाइज। और कोई भी पर्सनल इशू है तो आप मेरे को डायरेक्टली पिंग कर दो, एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को पिंग करना अगर कोई पर्सनल इशू है तो। और लिंक्डइन वगैरह पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना। लिंक्डइन अकाउंट जिन जिन लोगों का नहीं है प्लीज़ मेक इट। और दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट क्लासेस में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी अटेंडेंस रहेगी, और स्टार्टिंग हम फाउंडेशन से करेंगे, बेसिक से करेंगे, जितना भी हो सकता है हम कवर करेंगे। एंड आपको कोर्स कंटेंट पता ही है, प्रैक्टिकल्स आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2 क्लासेस के बाद से स्टार्ट होंगी। सो प्लीज़ बी अटेंटिव गाइज। फाउंडेशन लूज़ हो गया तो सब कुछ लूज़ हो जाएगा, तो डोंट स्किप फाउंडेशन कोर्सेज। थैंक यू सो मच गाइज, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड बाय।